Welcome back. So today we will cover this one of the OOPS concept called as polymorphism. So we started with the OOPS concepts. So these are the four different OOPS concepts. We have covered first two: encapsulation, inheritance, class object we know. So if you look at encapsulation is used to protect the object's data to achieve data security. Inheritance is for reusing the code from one object to another object. That is to avoid the code duplication. Then again third concept, that is polymorphism, that is also talking about object के बारे में discussion ये सारा. So what polymorphism concept is talking about object? Yes, one object can perform different tasks. So poly means many, आपने सुना होगा books में इधर उधर. Morph means form, method. So it is an ability of an object to have multiple behaviors and take on the behavior based on a situation. तो हमारे यहाँ पर दो ही सिचुएशन है प्रोग्रामिंग में. व्हाट आर द टू सिचुएशंस? कंपाइल टाइम एंड रन टाइम. सो ऑब्जेक्ट कैन चेंज द बिहेवियर, मतलब उसके पास मल्टीपल बिहेवियर हो सकता है. नाउ ही कैन चेंज द बिहेवियर either at compile time or run time, either at compile time or run time. So we'll talk about that. So in real life also it is an ability of an object to change the behavior of how हैव मल्टीपल बिहेवियर. जैसे अभी मयूरेश छुट्टी पे गया था, वो भूल गया कि मैं स्टूडेंट भी हूँ बोल के, अभी उधर पूरे एकदम ट्रैवलिंग मोड में ऑन. सो नाउ ही इज कंप्लीट डिफरेंट. वंस ही इज बैक, ही इज नाउ स्टूडेंट अगेन. So behavior is changing, right? Is it necessary to change? Yes, we need to change that. So let's talk about this concept polymorphism in detail. वेरी सिंपल. ऑलरेडी आपको 50% इसका नॉलेज है. यू ऑलरेडी हैव द अंडरस्टैंडिंग. पॉलीमॉर्फ, मॉर्फ यानी फॉर्म. So अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज एग्जैक्टली दिस इज, सो इट इज वन ऑफ द उप्स कॉन्सेप्ट. इट इज वन ऑफ द उप्स कॉन्सेप्ट. So you can also simply say, just like a textbook, poly means many, morph means method, function, behavior, implementation, and so on. Behavior change हो गया को. So what this exactly is? It is an ability of an object to have multiple behaviors and change it either compile time or runtime. सिंपल. अभी हमारे पास प्रोग्रामिंग में इज इट विजिबल या ब्लर दिख रहा है थोड़ा? ऑनलाइन एम आई ऑडिबल? हाँ सर. ओके. Now when I say behavior, I am talking about the method only. तो यहाँ पर होगा क्या कि you will have multiple methods with the same name, with the same name. So it is ability of an object to have multiple behaviors, usually same name but different work. नाम सेम रहेगा लेकिन काम अलग रहेगा. सिंपल.
अब यहाँ पर दो चीज आपको पता होना जरूरी है, मेथड डेफिनेशन एंड मेथड कॉल. हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज मेथड डेफिनेशन एंड मेथड कॉल? Everyone knows. So method definition means defining or writing set of instructions to do a particular job. And what does method call do? Perfect. So we have a method call, and there we have method definition. So what happens? So we have method definitions one side and other we have method call. तो मेथड कॉल करने पे ही जो स्टेटमेंट्स है मेथड डेफिनेशन के अंदर लिखे वो दैट विल बी एग्जीक्यूटेड. अब जब मेथड कॉल करोगे आपके पास मल्टीपल मेथड्स होगी. सो व्हाट आई सेड, पॉलीमॉर्फिज्म मींस मल्टीपल मेथड्स विद द सेम नेम बट डिफरेंट लॉजिक काइंड ऑफ. ये तो आपको समझ में आ रहा है. अब मुझे बताओ, आपके पास लेट से ऐसे कुछ मल्टीपल मेथड्स हैं. अब आपने मेथड कॉल किया. अब मेथड कॉल करने पर इनमें से कौन सी मेथड कॉल होगी, कौन सी मेथड एग्जीक्यूट होगी, ये करने के लिए यहां पर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज मेथड बाइंडिंग. मेथड बाइंडिंग. सो व्हाट इज मेथड बाइंडिंग? व्हाट आई मेंशन्ड इज आपके पास मल्टीपल मेथड्स हैं. You have multiple methods and you are going to make this particular method call. So method call पर कौन सी method execute होगी ये कैसे decide होता है? With the help of method binding. So what is method binding? Binding. इस कॉल पर ये मेथड चलेगा, ये बाइंड करना. सो व्हाट इज बाइंड करना मतलब इस पर्टिकुलर कॉल पर कौन सी मेथड चलेगी, इस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं बाइंड करना. मेथड कॉल एंड मेथड डेफिनेशन. सो व्हाट दिस कॉल्ड एज, इसमें होता क्या, मेथड बाइंडिंग में क्या होता है? इट इज सिंपली अ प्रोसेस. व्हाट इट डज, associating a method call with method definition. क्या है? सिंपल ये, it is simply a process where we associate or we bind a call with the method definition. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेथड बाइंडिंग. ठीक. नाउ अब ये प्रोसेस अगर कंपाइल टाइम होता है, क्या बोल रहा हूं मैं, मेथड बाइंडिंग. सो इस पर्टिकुलर कॉल पर कौन सी मेथड एग्जीक्यूट होगी, अगर इसका डिसीजन कंपाइल टाइम हो रहा है देन दैट इज कॉल्ड एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. अगर इसका डिसीजन रन टाइम हो रहा है, कंपाइल टाइम पे हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. अगर इसका डिसीजन कि ये मेथड कॉल पर कौन सी मेथड एग्जीक्यूट होगी, इसका डिसीजन रन टाइम पे हो रहा है, देन दैट इज कॉल्ड एज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. समझ में आ रहा है कि अब मेरे पास मेथड कॉल है और मेथड डेफिनेशन. अब कौन से कॉल पर कौन सी मेथड चलेगी, इसका अगर डिसीजन कंपाइल टाइम ही फाइनल हो गया देन दैट इज कॉल्ड एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. अगर इसका डिसीजन रन टाइम पे हो रहा है, कंपाइलेशन पे नहीं हो रहा है, रन टाइम पे डिसाइड हो रहा है कि which method will be executed, that decision is done at run time, that decision is done at run time, then that is called as runtime polymorphism. Very simple. So what are the types of polymorphism? So we have compile time polymorphism, compile time polymorphism, it is also called as or early binding or static binding. Runtime polymorphism or late binding or dynamic binding.
अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि बाइंड क्या करना है। बाइंडिंग मतलब अर्ली बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग, स्टैटिक बाइंडिंग, डायनेमिक बाइंडिंग। अब अगर मेथड कौन सी एग्जीक्यूट होगी, मेथड कॉल और मेथड डेफिनेशन, इनका अगर बाइंडिंग कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड होता है कि इस पर्टिकुलर कॉल पर कौन सी मेथड चलेगी, अगर इसका डिसीजन अर्ली होता है, if that is happening at compile time, that is called as compile time polymorphism or early binding or static binding। अगर आपका डिसीजन रन टाइम पे हो रहा है कि इस पर्टिकुलर कॉल पर कौन सी मेथड चलेगी, then that is called as रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और लेट बाइंडिंग। ये बाइंडिंग लेट हो रही है मतलब रन टाइम पे हो रही है। डायनेमिक बाइंडिंग, मेथड कॉल विल बी डिसाइडेड एट रन टाइम। So in compile time polymorphism, what happens? Very simple. So object changes its behavior at compile time। इसका और एक बोल सकते हो आप सिंपल तरीके से कि आपके पास मल्टीपल मेथड्स हैं और आप मेथड कॉल किया, तो उस सिंगल मेथड कॉल पर उनमें से कौन सी मेथड बाइंड होगी, एग्जीक्यूट होगी। ये अगर डिसीजन कंपाइल टाइम फिक्स होता है, अगर इसका डिसीजन कंपाइल टाइम होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज कंपाइल टाइम कॉल। वेरी सिंपल। तो यहाँ पर कॉल टू द मेथड इज डिसाइडेड एट कंपाइल टाइम। सो कॉल टू द मेथड इज डिसाइडेड एट कंपाइल टाइम, मतलब इस पर्टिकुलर कॉल पर कौन सी मेथड चलेगी, ये डिसीजन कहां पर हो रहा है आपका, कंपाइल टाइम पे। ठीक। नेक्स्ट, वेरी सिंपल। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये हम अचीव कैसे करेंगे। तो आपने ऑलरेडी मेथड ओवरलोडिंग पढ़ा है। सो वी अचीव कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यूजिंग मेथड ओवरलोडिंग। So we'll be looking at this. So in runtime polymorphism, what happens? Object changes its behavior at runtime. Call to the method is decided at runtime. We achieve runtime polymorphism using method overriding. Now already you have studied, अभी यहाँ तक तो क्लियर है आपको what do you mean by polymorphism और ये करने से क्या फायदा होता है। Your application become dynamic, your object becomes dynamic, it is having multiple behaviors, right? So it is becoming feature rich. That is one of the reason. Let's talk about the first thing, method overloading. We have already seen this. Have you seen that? So what is method overloading? बस ऑलरेडी आपको पता है, हम क्लास कंपोनेंट्स में देखा था, वेरिएबल्स, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर। What is constructor overloading, that we also see, right? So what is method overloading, Marius? Yes. Multiple methods, but what kind of? with same name different parameter. Simply we write it is a process of defining multiple methods either in the same class or in subclass with the same name but signature।
with the same name but different signature. Now what do you mean by signature? Either number of parameters or type of parameters must be changed. क्या है मेथड ओवरलोडिंग? आप मल्टीपल मेथड्स डिफाइन करते हो विद द सेम नेम, बट what is something we have to worry about? Oh, with the same name but different signature. Different signature का मतलब क्या होता है? टाइप ऑफ पैरामीटर और नंबर ऑफ पैरामीटर. रिटर्न टाइप यहां पर कंसिडर नहीं होता है. क्लियर है? और यहां पर बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस आएंगे आपको. कैन वी ओवरलोड इन कंस्ट्रक्टर? कैन वी ओवरलोड कंस्ट्रक्टर? कर सकते हैं ना. कैन वी राइट मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स? वी कैन ओवरलोड constructors in the same class. यहां पर एक और चीज याद रखना, मेथड का रिटर्न टाइप हम कंसिडर नहीं करते. किसके लिए? मेथड ओवरलोडिंग में. सो वी डोंट कंसिडर मेथड रिटर्न टाइप और मेथड ओवरलोडिंग. तो यहां पर हम वी डोंट कंसिडर रिटर्न टाइप. रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर. सेम हो सकता है, अलग हो सकता है. क्लियर यहां तक? नाउ देयर आर मल्टीपल इंटरव्यू क्वेश्चंस. सो कैन वी ओवरलोड स्टैटिक मेथड्स? सेम क्लास में कैन वी ओवरलोड स्टैटिक मेथड्स? मेन मेथड, तो मेन मेथड स्टैटिक नहीं है क्या? कर सकते हैं ना. प्राइवेट मेथड्स ओवरलोड नहीं कर सकते क्या इन द सेम क्लास? कैन वी डिफाइन मल्टीपल प्राइवेट मेथड्स विद द सेम नेम इन द सेम क्लास? तो वही क्वेश्चन है ना. सो कैन वी ओवरलोड मेन मेथड? यस. स्टैटिक मेथड? यस. What about private methods? Yes. What about final methods? We can overload. क्या क्या ओवरलोड कर सकते देखो एक बार. मेन मेथड, यस. स्टैटिक मेथड, यस. नॉन स्टैटिक मेथड, यस. कर सकते हैं, यस. फाइनल मेथड, yes. What about abstract method? We will talk about this abstract later today. ये सब कुछ आप ओवरलोड कर सकते हो. तो they will ask you individual questions. Can we overload static methods? हाँ कर सकते हैं. Can we overload private methods? Yes. Final methods? Yes. Static methods? Yes. तो ये आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऐसे. So can we overload this? तो याद रखना यहाँ पर बहुत सारे आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे. आप यहाँ पर गड़बड़ नहीं करना, ठीक है. सेम क्लास की बात है. सेम क्लास में आप कुछ भी कर सकते हो. So why do we write method overloading or why do we do method overloading? थिंक ऑफ, मुझे 2 नंबर का एडिशन करना या 3 नंबर या 4 नंबर या 10 नंबर जो भी है. तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? अगर मेथड ओवरलोडिंग नहीं है तो अलग अलग मेथड बनाओ अलग अलग नाम के से. सो ऐड 2 नंबर्स, ऐड 3 नंबर्स, ऐड 5 नंबर्स. तो अलग अलग मुझे मेथड्स लिखने पड़ेंगे. आई नीड टू राइट मल्टीपल मेथड्स. So instead of that, I will just write a simple name, add. Whether it is 2, whether it is 3 members, 4 numbers, doesn't matter. My method name will remain same. So that means method overloading is helping us to helps us in
increasing the code readability. So method overloading helps us in increasing code readability. तो readability बढ़ जाता है. I'm going to write that method public static int. ठीक, हम इसको प्राइवेट भी कर सकते हो. यस, अब ये 2 नंबर कर रहा है. आई कैन राइट अ मेथड टू डू 3 numbers. So can we overload private methods? Yes. Can we overload static methods? Yes. अब ये लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि प्राइवेट मेथड वैसे भी एक्सेसिबल नहीं होगी. अब मेरे पास ऑप्शन क्या है? 3 numbers, 4 numbers, addition of 3 numbers, 4 numbers. I am passing. So how do I call this method? This is non-static method. So I have to call this मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसका रेफरेंस यूज करके आई कॉल दिस. सो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज मेथड ओवरलोडिंग. सिंपल. Makes sense. So what is method overloading? Can you once again tell me? We define multiple methods with the same name, but what is changing? Signature. So signature means either number of parameters or type of parameters. तो यहाँ पर 2 parameters है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4. आप टाइप भी चेंज कर सकते हो. सो दैट इज नथिंग बट मेथड ओवरलोडिंग. अब यहाँ पर मैंने प्राइवेट मेथड भी ओवरलोड करी है, स्टैटिक मेथड भी करी है, फाइनल मेथड भी करी है, मेन मेथड भी करी है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हम कर सकते हैं. तो ध्यान रखना ये सब कुछ हम कर सकते हैं. कैन वी ओवरलोड कंस्ट्रक्टर पुष्कर? कैन वी ओवरलोड एन कंस्ट्रक्टर? कैन वी ओवरलोड मेन मेथड, final method, all? So what is the final method? What happens if I make final method? Cannot extend. हम मेथड को वैल्यू असाइन करते हैं वेरिएबल को, और क्लास अगर फाइनल है तो एक्सटेंड नहीं कर सकते. अगर वेरिएबल फाइनल है तो रीअसाइन नहीं कर. एक बार वैल्यू दे दिया, दैट्स इट. व्हाट अबाउट मेथड? अगर मेथड फाइनल है तो
अगर मेथड फाइनल है तो हम उसे ओवरराइड नहीं कर सकते, अगर मेथड फाइनल है तो उसे ओवरराइड नहीं कर सकते। तो अभी समझते एक बार मेथड ओवरराइडिंग, ऑलरेडी वैसे आपको पता है, और जस्ट टर्म मेथड ओवरराइडिंग। So what is this method overriding? Defining an instance method in the subclass. सबक्लास के अंदर आप इंस्टेंस मेथड लिखते हो एज ऑफ पेरेंट क्लास मेथड विथ सेम नेम। अब क्या करते हो, पेरेंट क्लास की मेथड जैसी है इंस्टेंस मेथड, उसको आप चाइल्ड क्लास में लिखते हो विद द सेम नेम, मतलब पेरेंट के अंदर जो मेथड का नाम है वही सब क्लास में लिखोगे, प्लस सेम सिग्नेचर, प्लस सेम सिग्नेचर, सेम रिटर्न टाइप। क्या क्या है, क्या सेम है? सेम नेम, सेम सिग्नेचर, सेम रिटर्न टाइप, सेम और मोर रिलैक्स्ड एक्सेस स्पेसिफायर। इसका मतलब क्या होता है? अगर पेरेंट क्लास में उसका एक्सेस स्पेसिफायर डिफॉल्ट है, मेथड का एक्सेस स्पेसिफायर क्या है? डिफॉल्ट। तो आप सब क्लास में उसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या रख सकते हो? डिफॉल्ट रखो या प्रोटेक्टेड रखो, मोर रिलैक्स्ड, उससे मोर रिलैक्स पब्लिक। अगर पेरेंट क्लास में मेथड का एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक है तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, यू हैव टू मेक दैट एज पब्लिक। अगर पेरेंट क्लास में प्रोटेक्टेड है तो सब क्लास में आपके पास प्रोटेक्टेड और पब्लिक। तो सबसे स्ट्रिक्ट कौन है? प्राइवेट, उससे थोड़ा कम डिफॉल्ट, उससे थोड़ा कम प्रोटेक्टेड, उससे थोड़ा कम पब्लिक। ये ऑर्डर याद रखना। सो व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग? वी डिफाइन एन इंस्टेंस मेथड in the subclass as of parent class method with the same name, same signature, same return type, same or more relaxed access specifier. अब आपका क्वेश्चन होगा कि सेम ही क्यों लिख रहे हैं? अब क्या क्या सेम है? सेम सिग्नेचर पूरा पूरा, उसका रिटर्न टाइप, एक्सेस स्पेसिफायर, नेम, सिग्नेचर, सब कुछ सेम है, लेकिन चेंज क्या होगा? उसका बॉडी। सेम मेथड चाइल्ड पेरेंट क्लास की मेथड हम एज इट इज चाइल्ड क्लास में नहीं लिख सकते, तो देयर इज नो पॉइंट राइटिंग द सेम लॉजिक विच इज देयर इन द पेरेंट क्लास मेथड इन द चाइल्ड क्लास मेथड। सो व्हाई डू वी डू मेथड ओवरराइडिंग? अगर आपको कोई सिंगल लाइन पूछे कि व्हाई आर यू डूइंग मेथड ओवरराइडिंग, सो यू शुड सिंपली एक्सप्लेन दैट इफ योर सब क्लास is not happy with the parent class implementation, then go with the method overriding. Example, लेट्स से मैं यूजर को नोटिफाई करता था पेरेंट क्लास का। मुझे यूजर नोटिफाई करने का लॉजिक मैंने यूज किया था पेरेंट क्लास का। यूजर को नोटिफाई करते थे हम ईमेल से, राइट? अब आज के तारीख में बस ईमेल कोई देखता नहीं है ज्यादा, तो मुझे उसे व्हाट्सएप पे भी नोटिफाई करना है, टेक्स्ट मैसेज भी भेजना है, या पुश नोटिफिकेशन भी भेजना है, तो वो लॉजिक पेरेंट क्लास के पास नहीं है। तो आप बोलोगे पेरेंट क्लास के अंदर ही लॉजिक ऐड कर दो, लेकिन वो लॉजिक किसी और को नहीं चाहिए ना। वो लॉजिक यूजर नोटिफाई, ईमेल भेजने का लॉजिक बस किसी को उतना ही चाहिए, तुम्हारी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, क्योंकि आपका एक क्लास मल्टीपल जगह यूज हो सकता है। मल्टीपल जगह एक पेरेंट क्लास दैट कैन बी यूज अक्रॉस मल्टीपल केसेस में, उसका रीयूज किया होगा, आपने भी रीयूज किया, आपको ईमेल फैसिलिटी मिल गया, यू आर हैप्पी दैट टाइम। बाकी लोग भी ईमेल फैसिलिटी यूज करें, दे आर हैप्पी, दे डोंट वांट एनी चेंज। बट आपका रिक्वायरमेंट क्या है? यू डोंट वांट नाउ ओनली ईमेल, यू वांट व्हाट्सएप चाहिए, आपको टेक्स्ट मैसेज चाहिए, ईमेल तो चाहिए, या मे बी यू डोंट वांट दैट, दैट इज अप टू यू। सो नाउ यू आर नॉट हैप्पी विद द पेरेंट क्लास लॉजिक, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आप बोलोगे वो मेथड यूज नहीं करेंगे हम पेरेंट क्लास का,
वो तो नहीं कर सकते ना, आपको तो बाय डिफॉल्ट एक्सेस मिला है उसका, आपने एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज किया है, तो बाय डिफॉल्ट दैट इज रेफरिंग टू पेरेंट क्लास मेथड। तो अगर आप चाहते हो कि पेरेंट क्लास की मेथड को रेफर ना करे और तुम्हारी चाइल्ड क्लास की मेथड को रेफर करे, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो सेम मेथड आपको भी चाइल्ड क्लास में लिखना पड़ेगा, सो दैट नाउ वेर एवर द मेथड इज कॉल्ड, किसको कॉल जाएगा, आपकी मेथड को। पहले किसको चाहता था, पेरेंट क्लास की, अभी आप क्या चाहते हो, आपका लॉजिक चले, तो दैट्स द रीजन वी डू द मेथड ओवरराइडिंग। सो व्हाई डू वी डू मेथड ओवरराइडिंग, we do method overriding, perfect। तो either you want to add more functionality or replace everything itself in child class. So if you are not happy with the parent class implementation, then we go with the method overriding. So why to use method overriding? So क्यों करते हैं हम, so if you are not happy with the with parent class implementation in method जो भी logic है, then we override the method and write the implementation। सिंपल क्या है, हाँ इनहेरिटेंस में क्या किया, जो कॉमन है वो आपको बाय डिफॉल्ट एक्सेस मिल जाता है, बट यू आर नॉट हैप्पी विद दैट लॉजिक, यू डोंट वांट ओनली ईमेल, यू वांट समथिंग एल्स एज वेल, तो उस केस में आपको पेरेंट क्लास में तो चेंज नहीं कर सकते हो, चेंज करना है तो चाइल्ड क्लास में करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पर कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस, we cannot overwrite main method, static method, नॉन स्टैटिक तो कर ही सकते हैं, फाइनल मेथड, abstract method तो are meant to for, so we cannot override main method, static method, final method and constructor as well, ठीक है, ध्यान रखना ये हम नहीं कर सकते ओवरराइड। मेक सेंस, क्या ओवरराइड कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या ओवरलोड कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, मेक सेंस। विल सी द सिंपल एग्जांपल। व्हाट इज सुपर कीवर्ड बाय द वे, perfect, now look at this, very simple, I want to create a simple class user service, I am sending void notify user, ठीक। अब ये वाला लॉजिक मैंने पेरेंट क्लास लिखा है, अब इसका सब क्लास में क्रिएट करने वाला हूं, क्लास यूजर सर्विस IMPL extends user service, so notified using WhatsApp। आपको और जो लॉजिक सी वो आप यहां पर लिख सकते हो, तो यहां पर हम लिखते हैं यूजुअली @override, ठीक। अब ये @override से पता चलता है कि हाँ ये ओवररिडन मेथड है।
अब ये लिखने से होता क्या है, नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, बट लिखने से एक थोड़ा विजिबिलिटी भी बढ़ता है कि हाँ दिस इज अ ओवररिडन मेथड. नाउ व्हाट हैपेंस, नाउ लुक एट दिस. क्या बोल रहे हो? सो ये सेइंग अरे आपने तो एट द रेट ओवरराइड लिखा है, मेथड डज नॉट ओवरराइड. तो जो ओवरराइड के लिए जो जैसा सिग्नेचर चाहिए वो चेंज है आपका. यहां पर मैंने अभी कर दिया, यहां पर पब्लिक है, तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, पब्लिक. यहां पर डिफॉल्ट है, चल जाएगा. मोर रिलैक्स्ड है, प्रोटेक्टेड है, दैट इज ऑल्सो फाइन. प्राइवेट, we cannot override private methods. अब एट द रेट ओवरराइड लिखने से दिस इज, आर यू मेकिंग सेंस व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग? We write a method in the subclass with the same name, same signature, same return type, same or more relaxed access specifier और logic. क्यों करते हैं? Because we are not happy with this logic. We are not happy with this particular logic. That's the reason we want to write our own logic in the subclass. ठीक. अब एट द रेट ओवरराइड क्या करता है? कैन यू टेल मी? ये लिखने से क्या होता है? लिखना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन लिखने से क्या होता है? इट विल मेक श्योर दैट दिस मेथड रिमेन्स द ओवररिडन सिंटैक्स. मतलब जो भी मेथड आपने बोला है कि दिस इज ओवररिडन, तो ओवररिडन जैसा दिखना चाहिए, अदरवाइज इट विल स्टार्ट थ्रोइंग यू compile time error. So that this is not a method overriding. So this is not overriding, then what is this? This is method overloading. So what is method overloading? Defining a method in the same class or subclass with the same name but different signature. यहाँ पर string है, यहाँ पर कुछ है नहीं. So this is method overloading. This is method overloading. ध्यान रखना. This is not method overriding. This is method. Perfect. Now it is overriding. ध्यान रखना difference. If you do not follow the syntax, same signature, everything, then that will become method overloading. But if you follow this, then it will become method overriding. So what is at the rate override do? मैंडेटरी है क्या ये लिखना? इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ऑप्शनल. It is optional to annotate. So this is an annotation, by the way. We will talk about what is an annotation. So annotation, for now, just understand this is some extra information that is added to this particular thing. Method हो गया, class हो गया. So we'll talk about that. So it is optional to annotate क्या? Overridden method with @ override. ठीक. अब एनोटेशन जो आपको दिखाई दे रहा है, फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस इज सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. दिस इज सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट इज एडेड. अब ये लिखना मैंडेटरी नहीं, ऑप्शनल है. बट अगर आप ये लिखते हो, इफ यू राइट दिस, इफ इट इज मार्क्ड, if it is marked, what is going to happen? Then it must be, if it is marked, then it must be. लिखना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन लिखा तो क्या करना पड़ेगा? If it is marked, then it must be on an overridden method. अब ये ओवरराइड एनोटेशन क्या मेक श्योर करता है? ओवरराइड एनोटेशन मेक श्योर द मेथड जो आपने लिखी है, मेथड सिग्नेचर मैचेस विद द पेरेंट क्लास मेथड सिग्नेचर. Easy.
हाँ मतलब पूरा सिग्नेचर नाम नाम अलग होगा तो दैट विल नॉट बी ओवरहेड। सिग्नेचर हो गया, हाँ वो स्कोप उसका विजिबिलिटी चेक करेगा पूरा, दैट शुड बी मोर रिलैक्स्ड। अब यहां पर मैंने उसको कर दिया डिफॉल्ट, नहीं चलेगा। केस नंबर 2 3, कोई भी जाओ। नाउ इफ आई क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ यूजर सर्विस, नाउ किसका मेथड कॉल होगा? अगर ये हटा दिया तो यूजर सर्विस का कॉल होगा, आर यू श्योर? अभी नहीं है तो, बट अगर अभी लिख दिया तो ऑब्जेक्ट किसका बना है? पेरेंट का नहीं बनाया मैंने, चाइल्ड का बनाया मैंने। चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास रेफरेंस, तो किसकी मेथड कॉल होगी? पेरेंट क्लास की या चाइल्ड क्लास की? चाइल्ड क्लास। व्हाट्सएप, notified using WhatsApp. Now think of, I don't have this. अब मेरा मेथड कॉल वैसे के वैसा ही है। तो अभी parent class. So I am not happy with that. That's the reason I am overriding the method. Now I will be able to access from child class. Make sense? क्लियर है? पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस है यहाँ पर। क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे? व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई आर वी डूइंग दैट? So what is polymorphism? What benefits us? What is method overloading? Why we are doing method overloading? What is method overriding? Why we are doing this? What are the rules to override? What are the rules to overload? Then which methods we cannot overload? Which methods we can overload? Which methods we cannot override? ये सारे questions आपको पूछे जाएंगे। Why are we doing method overriding? तो method overriding आपको mandatory ही आना ही है। तो केस नंबर 3, parent class reference, child class object. So if method is present in both parent and child, which method will be called? If method is present in both parent and child, तो ऑब्जेक्ट बनेगा चाइल्ड क्लास का, उसे आप होल्ड करो, पेरेंट क्लास रेफरेंस है, तो किसकी मेथड कॉल होगी? चाइल्ड क्लास की। समझ में आ रहा है ये वाला? परफेक्ट, थिंक वी आर गुड। तो दैट्स वेरी सिंपल पॉलीमॉर्फिज्म, थर्ड कंपोनेंट, थर्ड ऊप्स कॉन्सेप्ट, दैट्स इट। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसमें एक और पॉइंट है जो एक्सेप्शन हैंडलिंग के टाइम हम पढ़ेंगे, थ्रोस कीवर्ड के बारे में। कहां पर? अब आपका जो मेथड सिग्नेचर है, मेथड सिग्नेचर, सो यहां पर बाद में इंटरव्यू क्वेश्चन, जस्ट आई एम जस्ट पुटिंग दिस, यहां पर भी क्वेश्चन आता है, थ्रोस इन केस ऑफ ओवररिडन मेथड। अभी समझ में नहीं आएगा आपको, बट दिस इज वन ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चन दैट यू शुड बी ओवररिडन मेथड एंड ओवरलोडेड मेथड। आपको ये बाद में जब एक्सेप्शन हैंडलिंग होगा, दैट टाइम यू आर सपोज टू कम बैक टू दिस क्वेश्चन। थ्रोस कीवर्ड के बारे में, वो सिग्नेचर में यूज होता है। सो थ्रोस कीवर्ड, सॉरी, कीबोर्ड भी डांस कर रहा है, क्या हो गया उसको? थ्रोस कीवर्ड इज
Throws keyword is used in method signature. We'll talk about that later on, but ये वाला क्वेश्चन भी इंटरव्यू में पूछा जाता है. So मैं भूल भी गया तो you will come back to this so that you will understand. हाँ, this is one of the question. अभी आपको बताऊंगा तो नहीं समझ में आएगा, बट इतना है कि थ्रोस कीवर्ड हम यूज करते हैं सिग्नेचर के अंदर, बॉडी के अंदर नहीं यूज करते, सिग्नेचर में, राइट. एग्जाम्पल, नोटिफाई यूजर थ्रोस रन टाइम एक्सेप्शन, ऐसे कुछ. और ये कर रहा है लेट्स से थ्रोस आईओ एक्सेप्शन. ये कुछ एरर आ रहा है. अब ये एरर क्यों आ रहा है? तो ये क्यों आ रहा है, दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा रखना है, सेम रखना है, डिफरेंट रखना है, तो आपको अभी हायरार्की नहीं पता है, सो आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस एज ऑफ नाउ, बट दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन दैट इज आल्सो अ ट्रिक क्वेश्चन पीपल आस्क इन द इंटरव्यूज. क्लियर? Perfect. Now with that, we come to the conclusion of third concept, that is polymorphism. Now we have last concept that is very important, that is called as abstraction. Now what this concept is? Now in order to understand abstraction, you are supposed to understand आपको मैंडेटरी क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास कंपोनेंट्स क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर्स पता होना चाहिए, पॉलीमॉर्फिज्म आपको पता होना चाहिए, देन ओनली इट विल मेक सेंस टू अंडरस्टैंड अब्स्ट्रैक्शन. तो ये आपका बेसिक्स क्लियर है, तभी आप अब्स्ट्रैक्शन समझ सकते हो. सो व्हाट एग्जैक्टली अब्स्ट्रैक्शन इज, आई हैव सिंपली स्पेसिफाइड हाइडिंग हाउ पार्ट. तो हाइडिंग हाउ मतलब हम लॉजिक कहां पर लिखते हैं, मेथड्स के अंदर, राइट. सो अब्स्ट्रैक्शन कीवर्ड, सो और अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, अब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट, हम मतलब यहाँ पर कुछ हम हाइड करने की बात कर रहे हैं. सो व्हाट आर यू गोइंग टू हाइड? ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है. सो ऑब्जेक्ट हैज इंप्लीमेंटेशन, ऑब्जेक्ट हैज बिहेवियर. सो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अब्स्ट्रैक्शन वी आर गोइंग टू हाइड ऑब्जेक्ट्स, मेथड इंप्लीमेंटेशन और बिहेवियर इंप्लीमेंटेशन, जो भी इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स है. हम क्या करेंगे यहाँ पर, वी विल जस्ट एक्सपोज व्हाट, बट वी विल नॉट टेल हाउ. मैंने आपको गूगल मैप्स का एग्जांपल दिया था. सो मोस्ट ऑफ दी कैब सर्विस आपने देखा होगा, ओला, उबर, रैपिडो, जोमेटो, स्विगी, ये लोग क्या करते हैं, मैप सर्विस यूज करते हैं. तो क्या लगता है गूगल ने उनको एक्सेस दिया होगा सारी सर्विसेज का? गूगल ने बस बताया होगा व्हाट, ये इनपुट दो और आपको ये आउटपुट मिलेगा, दैट्स इट. दे आर नॉट गिविंग यू हाउ पार्ट, इंप्लीमेंटेशन नहीं देंगे आपको, हाउ पार्ट इज नॉट एक्सपोज्ड. तो सिमिलरली हम भी जब एज अ डेवलपर लॉजिक लिखेंगे, सो वी वांट टू हाइड द इंप्लीमेंटेशन और हाउ पार्ट, राइट. क्यों हाइड करना है? अरे यार मुझे बताओ, लेट्स से मुझे ईमेल भेजना है, मुझे क्या पता होना चाहिए, किसको भेजना है, क्या भेजना है, बस इतना ही चाहिए. कैसा भेजा जा रहा है, वो कॉम्प्लेक्सिटी जान के मैं क्या करूं? तो जिसने भी ईमेल भेजने का लॉजिक लिखा हो, उसने सोच समझ के कुछ ना कुछ लिखा होगा, तो मुझे वो कॉम्प्लेक्सिटी जानने की जरूरत नहीं है. So in that case, I am able to hide that implementation. I don't need to understand. Let's say मुझे कोई OTP जनरेट करना है, so randomly कोई नंबर जनरेट करना है. So how to generate random number, उसका लॉजिक ऑलरेडी लिखा है किसी ने. तो आई एम नॉट वरीड अबाउट हाउ इट इज डन. मुझे क्या चाहिए, बस ये इनपुट, उसके बदले मुझे ये आउटपुट दे दो. सो सिमिलरली यू वांट टू बिहेव similarly, that you are going to just expose the functionality and hide the implementation how part. So then the concept comes as abstraction. ठीक, चारों कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट के बारे में ही बात कर रही है. कुछ हाँ, कुछ तो हाइड हो रहा है यहाँ पर, ऐसे कुछ हमने ऐसे उस दिन लिया था मेमेस. परफेक्ट. सो लेट्स टॉक अबाउट दी वन ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट इज आल्सो, यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है ये चारों कॉन्सेप्ट पर. आपने इंटरव्यू अगर दिया होगा आप तो यू मस्ट बी नोइंग,
कि कितना क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा जाता है। सो अब्स्ट्रैक्शन क्या है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, इंटरफेस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में क्या डिफरेंस है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास कब यूज करना चाहिए, इंटरफेस कब यूज करना चाहिए, अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, कब एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करना चाहिए, कब इंटरफेस यूज करना चाहिए, अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम क्या क्या चीजें लिख सकते हैं, इंटरफेस के अंदर क्या क्या चीजें लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर। बट अगर आपको ये समझ में आता है यू विल बी एबल टू मेक सेंस, इतना डिफिकल्ट है नहीं। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज अब्स्ट्रैक्शन बाय द वे। तो पहले तो वर्ड अब्स्ट्रैक्ट यानी इनकम्प्लीट, abstract means incomplete and final means, so these are two opposite words, abstract and final. So we cannot use abstract and final together, otherwise we get compile time error। समझे, ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, अलग मतलब है, दीज आर अपोजिट टू ईच अदर। अब्स्ट्रैक्ट मीन्स इनकम्प्लीट, फाइनल मीन्स कंप्लीट। तो अब तो आपको यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैन वी मेक एन abstract method as final, can we make abstract class as final, can we make a final class as abstract, can we make final method as abstract, no। सो फाइनल एंड abstract दोनों एक साथ हम यूज नहीं कर सकते, सो ध्यान रखो इसको, बिकॉज दे आर डिफरेंट। सो व्हाट एग्जैक्टली abstraction is? Simply process of hiding what, क्या हाइड कर रहे हैं हम, implementation, hiding implementation, that is how part, and exposing the functionality, exposing the functionality, that is what। सिंपली आप बोल सकते हो कि हम यहां पर क्या करने वाले, वी आर गोइंग टू सिंपली स्पेसिफाई व्हाट, शो व्हाट एंड हाइड हाउ। अब क्यों करते हैं हम अब्स्ट्रैक्शन, आपका क्वेश्चन होगा कि क्यों हम अब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए। आपने बोल दिया ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट मतलब इनकम्प्लीट, फाइनल मतलब कंप्लीट, अब्स्ट्रैक्शन मतलब हाइड करना है कुछ, क्या हाइड करना है, इंप्लीमेंटेशन लॉजिक, हाउ पार्ट, बट क्यों करना है ये। हाँ, हमारा लॉजिक कोई और यूज ना करे, ये भी हो सकता है, दैट इज वन थिंग। अब मुझे बताओ, जब आप एप्लीकेशन बिल्ड करना स्टार्ट करोगे या मतलब आपको एक बड़ा सिस्टम बिल्ड करना है, तो डे वन पे ही आपको सब कुछ पता होगा क्या, वेदर यू विल नो एवरीथिंग बाय द डे वन इटसेल्फ कि इसका लॉजिक ऐसा होगा। बस आपको डे वन पे ये बस पता होगा कि ये फंक्शनलिटी चाहिए मुझे, ये इनपुट देने पर ये आउटपुट आना चाहिए। अब वो कैसे आएगा, दैट इज लेटर स्टोरी। सो इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन टुडे, if you are not sure about the implementation today, and we are going to have multiple implementations for that, let's say मुझे यूजर से पेमेंट एक्सेप्ट करना है, तो एक्सेप्ट पेमेंट, accept the payment, this is the functionality, but how I am going to accept the functionality, that is not known today. Tomorrow I will ask UPI, net banking, there might be n number of things. So how I am going to accept the payment, it is going to be later functionality. Today I just know accept payment should be there on the day one. So कब use करना है, why we are using this, so why to use, sorry, why to use abstraction, बोलो।
So अगर हम डे वन पे, so if you are not implementing the logic at the design step, so what we do, we just declare them. Design step, later we can just declare them abstract without body, and later implement that. क्या बोला मैंने? If you are not implementing the logic, if you are not implementing the logic at the design step phase, we can just declare them abstract, यानी without body, and later implement that. तब हम यूज करना चाहिए abstraction. क्या यूज करना चाहिए? Abstraction. We should be using abstraction. So अभी हमारे पास how ready नहीं है, we just know what. Right? Now I want to do this stuff. I want to implement abstraction. So how do I create methods without logic? How do I write methods without how? वो कैसे करेंगे? कैसे implement करेंगे? So that is done with the help of. So abstraction can be achieved in Java using abstract class or an interface. So why are we going to use this? So abstraction can be achieved in Java using abstract class or an interface. अब दोनों भी type of classes ही है. Both of these are type of classes. Make sense? What is abstraction? Why are we doing this? How are we going to do that? Chalo. Next. Now there are certain terms: concrete method, concrete class, then abstract method, abstract class. So let's try to understand this. ये कुछ टर्म्स है, आपको ऑलरेडी पता है. यू ऑलरेडी नो व्हाट इज कॉन्क्रीट मेथड, व्हाट इज कॉन्क्रीट क्लास. बस आपको पता नहीं कि इसको हाँ यही इसे बोलते हैं. तो अभी तक जो आपने मेथड्स लिखी है, कैसी मेथड लिखी है? कैन यू टेल मी? अभी तक जो हमने मेथड्स लिखी है, these methods are called as concrete methods. So methods which are defined with the method body are called as concrete methods. कैसी methods? Methods which are with method body. अभी तक जो आपने डिफाइन करी है उसे आप, जैसे कोई मेरा क्लास है A और उसके अंदर कोई मेथड है, void print so this is your concrete. और क्लास ए में कौन सी मेथड है? सो कौन से क्लास को कॉन्क्रीट क्लास बोलोगे आप? ओनली
right? So class which contains only concrete methods. Class which is created, class which contains only concrete methods, and class is created. So class is created without abstract keyword and which contains only concrete methods. अब देखो मुझे यहां पर बताओ, ये क्लास ए के पहले मैंने कुछ abstract कीवर्ड वगैरह कुछ लिखा है? नो. तो विदाउट abstract कीवर्ड मैंने ये क्लास बनाया, उसके अंदर क्या मिलेगा आपको? ओनली कॉन्क्रीट मेथड्स. अ क्लास which is containing only concrete methods and which is created without abstract keyword, it is called as concrete class. तो अभी तक हमने जो भी क्लासेस बनाए, all of these were concrete classes. जो भी मेथड्स बनाए वो सारे concrete methods. concrete method मतलब with body, with method body, curly braces, that is something method body. ऐसे मेथड को हम बोलेंगे concrete method. क्लियर ये दोनों टर्म्स? परफेक्ट. अब मैंने आपको abstract वर्ड का मतलब समझाया था. व्हाट इज दैट? इनकम्प्लीट. So what is this? Abstract method. It is going to be an incomplete method. What about abstract class? It is also going to be incomplete. So what is going to be incomplete in abstract method? Method body, right? So a method which is created using abstract keyword and without method body. Example. So I'm going to write a keyword called as abstract void print. So this is your abstract method. So what is an abstract method? A method which is created using abstract keyword and without method body. This is our word. Now the question is, where can I write this abstract method? Can I write this in concrete class? concrete class में abstract method लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते. concrete class किसे बोल रहे हो आप? जिसमें बस concrete method रहेगी. तो abstract method कहाँ लिख सकते हो? Perfect. So abstract methods. तो एक और ध्यान रखना, we cannot define abstract methods. कहाँ पर? Inside the concrete class. ठीक है, concrete class में आप नहीं लिख सकते, तो फिर कहाँ लिख सकते हो आप? लिखना है तो perfect. So we can define them inside an abstract class or an interface. आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो abstract class में लिखो या interface में लिखो, लेकिन concrete class के अंदर आप नहीं लिख सकते. Clear यहाँ तक? Are we able to make sense? Now what is an abstract class, by the way? Class which is using abstract keyword. Oh, हाँ, can contain. It is not mandatory. A class which is created using abstract keyword which can contain abstract or non-abstract methods. Non-abstract methods. Let's say I'm writing first abstract keyword followed by class keyword and there I can write
Now, by looking at this, you are now clear that this is an incomplete class. So what is an abstract class? A class which is created using an abstract keyword. अब आप उसे खाली भी रख सकते हो. अभी क्वेश्चंस आएंगे कि हम abstract class में क्या लिख सकते हैं. So abstract class can be, it is not mandatory. By the way, it is not mandatory. So it is not mandatory. It is not mandatory to write abstract methods in abstract class. Technically. But logically देखा जाए तो abstract method अगर हम abstract class के अंदर नहीं लिखेंगे तो फिर उसके अंदर normal method लिखेंगे. That doesn't make sense. Right? So let's try to understand. So abstract class यानी ऐसा class जो क्रिएट करते हैं हम abstract कीवर्ड के साथ और जिसके अंदर हम abstract मेथड लिख सकते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हम abstract क्लास के अंदर क्या क्या लिख सकते हैं. What all components we can write inside an abstract class? क्या क्या लिख सकते हैं हम. एक नॉर्मल क्लास में जो लिखते हो आप क्या लिख सकते हो. All the components from a concrete class. कौन से members? Static and non-static members. Static, non-static members. अब इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. क्या क्या लिख सकते हो आप. Instance variable, static variable, instance method, static method, constructor, instance block, static block, then inner classes, static nested classes and so on. ये सब कुछ आप लिख सकते हो. जो नॉर्मल जावा क्लास के अंदर आप लिख सकते हो वो सब कुछ आप यहां पर लिख सकते हो. ठीक. प्लस we can keep any number of abstract methods 0 to n. क्या लिख सकते हो abstract class के अंदर आप. बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे abstract class और इंटरफेस के डिफरेंस में. आप क्या लिख सकते हो. Everything from the concrete class plus if you want to have abstract methods. By the way, वैसे आप abstract class खाली भी रख सकते हो. But is it mandatory to write abstract method inside the abstract class? हाँ, abstract method लिखना है तो वो कहाँ लिखना है. abstract class के अंदर. But abstract class में mandatory नहीं है abstract method लिखना. वो खाली भी रख सकते हो. But there is no point keeping the class empty. So what all things we can write? Everything from the concrete class. ठीक. Next question. What is multiple inheritance, Akshay? तो मुझे ये भी बताओ फिर. Is multiple inheritance supported through abstract classes? सोचो. अरे बहुत सिंपल है यार. लेट्स से मेरा ए क्लास और बी क्लास दोनों कैसे हैं. abstract. अब abstract क्लास में इंस्टेंस मेंबर रख सकते क्या हम. तो लेट्स से यहां पर भी एक इंस्टेंस मेथड है और यहां पर भी सेम इंस्टेंस मेथड है. बेचारा फिर फंस गया.
So what is the problem for the C class? C class is trying to reuse code from class A, abstract class B as well. Now what is the problem for class C? Confusion. There is a confusion. Which members to access? So strictly answer is no. So is multiple inheritance supported through abstract classes? No. Why? As abstract class can contain instance members. No, as abstract classes can contain instance members. And this will be confusion for subclass. Check. So simply we cannot extend more than one abstract classes. Check. Now the point changes here with the interfaces. Is multiple inheritance supported through interfaces? Yes. Why? Interfaces cannot have instance members. So there won't be any confusion for the subclass. So we can implement more than one interfaces. Clear yahan tak? So what is an abstract class? What all things we can write inside the abstract class? What all things? Then is multiple instance supported to abstract classes? No. Now, very important. Can we create an object? Can we create an object of an abstract class or an interface? ऑब्जेक्ट बना सकते क्या? यस, क्या बात है. तो स्टैटिक मेंबर्स बिलोंग टू क्लास. तो अगर abstract क्लास है आपका, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे तो उसकी इंस्टेंस मेंबर्स कैसे एक्सेस करोगे आप? ऑब्जेक्ट बनेगा? अरे आपने बोला है abstract मतलब इनकम्प्लीट, तो इनकम्प्लीट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता. Interface is also incomplete, abstract class is also incomplete. Even though that abstract class is empty, interface is empty, you cannot create object. क्योंकि by writing abstract, you are saying that this is an incomplete class. By writing interface keyword, you are saying this is an incomplete class. So incomplete class का object नहीं बनता है. So strictly answer is no. So even though, since it is incomplete, since it is an incomplete class, check, even though abstract class or interface is empty. तो बहुत सारे लोग एस बोल देते हैं कि we can create object of abstract class, we can create object of interface also. So why we cannot create object? Because they are declared as incomplete, even though they are empty. तो बहुत बार ये लोग भी गड़बड़ करते हैं कि हाँ क्लास empty है तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, इंटरफेस empty है तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. That is wrong. हाँ हो सकते हैं ना. हाँ तो that is next question. That is next question. So how to access? अभी आपको पता होगा constructor. So when constructor of that particular thing will be executed. So how to execute constructor of an abstract class? तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका. So if you know this answer, so I have an abstract class और उसका कंस्ट्रक्टर मुझे एग्जीक्यूट करना है.
कैसे करोगे? यस, लेट्स से मेरे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए, और इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, लिख सकते हैं ना कंस्ट्रक्टर, ठीक। एंड अब मुझे ये कंस्ट्रक्टर चलाना है, बट ऑब्जेक्ट तो नहीं बना सकते, सो हाउ डू वी क्रिएट दैट? फ्रॉम एनी गिवन, फ्रॉम एनी गिवन constructor, there are two things. From any constructor, बताओ फटाफट, there are two things. What is that? Now you might answer this. सुपर कीवर्डलेस। तो यहां पर क्या होगा, एक चीज सुपर, सो हाउ टू एग्जीक्यूट कंस्ट्रक्टर? हाँ, मतलब क्या करना पड़ेगा? क्रिएट अ, क्रिएट द सब क्लास, create the subclass of a abstract class and create the object, create the object, किसका क्रिएट करना है? of subclass. So from subclass constructor, from subclass constructor, there will be call to the superclass constructor. I hope that makes sense. अभी ऑब्जेक्ट किसका बनाना है आपको? बी क्लास का। ए, ए इक्वल टू न्यू बी, तो यहां से आपका और फिर यहां से सिंपल। अब मुझे बताओ बाकी मेंबर कैसे एक्सेस करोगे आप? How are you going to access instance variables, instance method of an abstract class? रेफरेंस, किसका रेफरेंस? पेरेंट क्लास रेफरेंस, लेकिन ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है? चाइल्ड क्लास। So using that you can access abstract class का members, instance variables, instance methods. But there is one catch. If the same method is present in child class, if same method is present in child class, then child class की मेथड कॉल होगी। फिर चाइल्ड क्लास की मेथड से आपके पास ऑप्शन है कि आप पेरेंट क्लास की मेथड कॉल करो या कीप योर ओन लॉजिक। इजी? हाँ, इंटरफेस के लिए इंटरफेस कीवर्ड है, इंटरफेस
I1 ये ऐसे बनाते हो आप इंटरफेस, पर इसके अंदर फिर क्या नहीं लिख सकते वही है, मतलब अभी अब्स्ट्रैक्ट क्लास समझ में आ गया तो यू विल बी एबल टू मेक सेंस ऑफ इंटरफेस। तो इसको पढ़ेंगे हम, बट ऐसा इंटरफेस कुछ क्रिएट करते हैं, बट इसमें क्या क्या नहीं होगा, इंस्टेंस मेंबर कुछ नहीं होगा, होगा तो बस एब्स्ट्रैक्ट। ठीक, वी विल कवर दिस। अब आपको घर जाके क्या करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द इनहेरिटेंस बिटवीन दिस टू क्लासेस, राइट सम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स इनसाइड दिस, फिर हम देखेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, जस्ट स्पेंड सम टाइम ऑन दैट। सो विल कवर हाउ डू वी क्रिएट सब क्लास ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये आपके सामने ही है, बट देयर आर सम ट्विक्स, जैसे यहाँ पर इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो व्हाट विल हैपन विद द सब क्लास, if there is a subclass is concrete, if subclass is abstract, what will happen? ठीक है, we are good, I think we can stop.